by Shri Shripad Yesso Naik Ji, Honorable Union Minister of State, Ministry of Power and Minister of State, Ministry of New and Renewable Energy. We are joined by Shri Vishwajit Rane Ji, the Honorable Minister of Health, Forest, Women and Child Development, Government of Goa. We are joined by Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha Ji, Shri Praveen Arlekar Ji, Honorable MLA, Pernem, Goa, Director, All India Institute of Ayurveda, Goa, Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati Ji, and Dean, All India Institute of Ayurveda, Goa, Professor Dr. Sujata Kadam Ji. We welcome our dignitaries who have joined us here today on the wonderful occasion of the celebration. This year, the spotlight is on the All India Institute of Ayurveda, Goa, chosen as the nodal institute for 10th Ayurveda Day. सन 2017 में AIIA न्यू दिल्ली को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था और 2022 में AIIA गोवा की स्थापना भी उनके कर कमलों से ही हुई है। आज मात्र 3 वर्षों में, ladies and gentlemen, in a span of 3 years, the institute is offering 300 plus undergraduate students, 10 postgraduate courses, a 100-bed Ayurveda hospital, and 22 plus specialized outpatient services with its motto, Care with Compassion. Its vision being education, research, innovation, and patient care. As we begin the proceedings, we begin the program with Yog Nritya, a harmonious blend of yogic postures and graceful movements offering a spiritual expression of balance, rhythm, and inner peace. Ladies and gentlemen, these are the undergraduate students of All India Institute of Ayurveda, Goa.
We will now move forward and present a beautiful Goa cultural welcome by our artists. Goa, where every beat has a rhythm, every step has a story, and every moment is a celebration. And what better way to begin this celebration than with the colors, music, and energy of Goa itself. Ladies and gentlemen, get ready to experience the lively spirit of Goa through this special Goan performance. We present to you a very special Goan performance. चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, चेहरे पे आपके मुस्कान रहे। ढेर सारी मुस्कुराहटें इस बहुत ही शुभ दिन, शुभ अवसर पर एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस आप सभी के समक्ष हमारे कलाकार अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दामुल्या माटवा घुमटा वाजवता आणि घुमटाच्या ताला कणव बापर दडी वैता दामूच्या लग्नाक वैता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हांव सायबा दडी वैता दामूच्या लग्नाक वैता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना दामुल्या माटवान कलवतांचो खेळू दामुल्या माटवान कलवतांचो खेळू Baba
करतल ध्वनि हमारे इन सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत आभार। देवियों और सज्जनों, अब वो समय आ चुका है, वो क्षण आ चुका है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। Ladies and gentlemen, the moment is here where we will now be inviting our esteemed dignitaries who have joined us here today on the stage. Please join hands as we welcome our chief guest for the day, the Honorable Governor of Goa, Shri Pusapati Ashok Gajapati Raju ji on the dais. Zordar taliyon ke saath abhinandan. We welcome the Honorable Chief Minister Goa, Dr. Pramod Sawant ji on the stage. Punah Kartal Dhwani se Abhinandan. We welcome Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush and Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare. Bahut bahut Abhinandan. We welcome Shri Shripad Yeso Naik ji, Honorable Union Minister of State, Ministry of Power and Minister of State, Ministry of New and Renewable Energy. We welcome Shri Vishwajit Rani ji, the Honorable Minister of Health, Forest, Women and Child Development, Government of Goa. We welcome Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha ji. We welcome Shri Praveen Arlekar ji, Honorable MLA, Paranam, Goa. We welcome Director, All India Institute of Ayurveda, Goa, Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji, and Dean AIIA Goa, Professor Dr. Sujata Kadam ji. देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. Ladies and gentlemen, as we formally commence the proceedings, may I please request everyone to kindly rise for the national anthem now. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. हमारे देश में परंपरा है, हजारों वर्षों से हम कहते आए हैं अतिथि देवो भव. अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमने सदा से ही परम धर्म माना है. Ladies and gentlemen, we would be extending welcome to our esteemed dignitaries who have joined us here today. May I please request Vaidya Rajesh Kotecha ji, Secretary Ministry of Ayush, to kindly accord a green welcome to our chief guest, the Honorable Governor of Goa, Shri Pusapati Ashok Gajapati Raju ji. A round of applause करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं. After the green welcome, we have another beautiful way of extending a special welcome. बहुत बहुत स्वागत. May I once again request Vaidya Rajesh Kotecha ji to welcome the Honorable Chief Minister Goa, Dr. Pramod Sawant ji. According a green welcome and also a very special token of respect. May I please request Professor Dr. Sujata Kadam ji to kindly welcome Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush and Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करतल ध्वनि सभी की ओर से.
बहुत बहुत स्वागत, पुनः अभिनंदन, वंदन, आभार. May I please request Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji, Director AII Goa, to please welcome Shri Shripad Yesso Naik ji, the Honorable Union Minister of State, Ministry of Power and Minister of State, Ministry of New and Renewable Energy. बहुत बहुत स्वागत, पुनः अभिनंदन, वंदन, आभार और सभा की ओर से करतल ध्वनि हमारे सभी अतिथियों के लिए. बहुत बहुत स्वागत, श्री श्रीपद नायक जी, अभिनंदन, आभार. May I please request Professor Sujata to please welcome Shri Vishwajit Rani ji, the Honorable Health Minister of Goa. May I please request Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji to welcome Secretary Ministry of Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha ji. बहुत बहुत स्वागत. अभिनंदन, हमारे बीच हैं वैद्य राजेश कोटेचा जी. करतल ध्वनि सभा की ओर से सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बहुत बहुत स्वागत. पुनः अभिनंदन, वंदन, स्वागत, आभार. सभी की ओर से पुनः जोरदार तालियां, करतल ध्वनि हमारे सभी अतिथियों के लिए. We welcome Shri Praveen Arlekar ji, Honorable MLA Pernem Goa. मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता जी से कि कृपया हमारे अतिथि श्री प्रवीण अर्लेकर जी का भी स्वागत करें. आइए हम सब मिलकर पुनः अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं. पुनः जोरदार तालियां सभी की ओर से. द ऑनरेबल MLA फ्रॉम पेरनेम गोवा, बहुत बहुत स्वागत. Once again, a very warm welcome to all our dignitaries who have joined us here today. एक और बहुत सुंदर परंपरा जहां ईश्वर का नाम लेते हैं और दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं. मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से कि कृपया लैंप लाइटिंग के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने की कृपा करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा, Chief Minister Goa and the other dignitaries to kindly light the ceremonial lamp as we begin with the proceedings for the celebration. I invite Dr. Karthik KP to kindly recite Dhanvantari Vandana. दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाभोजोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम्. धन्वंतरी वंदना की गूंज के साथ दीप प्रज्वलन की ये बहुत ही सुंदर परंपरा निभाते हुए आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमने किया है.
चलते हैं धरती से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर। यही आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हम सभी के जीवन में प्रकाश हो। लेट देयर बी लाइट ऑफ विजडम in our lives. With the beautiful ceremonial lamp lighting, ladies and gentlemen, now we move further. In order to welcome our august gathering today, may I please invite Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji, Director, All India Institute of Ayurveda, Goa, for presenting the welcome address now. Ladies and gentlemen, let's welcome sir with a round of applause. नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आज के इस 10वें आयुर्वेदा डे पे के प्रोग्राम पर हम अपने माननीय ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम, गवर्नर ऑफ गोवा श्री कुशापति अशोक गजपति राजू जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ दिस प्रोग्राम श्री गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे प्रथम आयुष मंत्री श्रीपाद एसो नायक जी, माननीय विधायक माननीय विधायक पेड़ने गोवा श्री प्रवीण आलेकर जी, माननीय सचिव श्री वैद्य पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेजा जी, पद्म विभूषण वैद्य त्रिगुणा जी, धारगाल और गोवा राज्य के विशिष्ट अतिथिगण, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स ऑफ एया, हेड्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिसर्च councils, commissions, board and Ministry of Ayush, representative from the various national institutes, ITRA Jamnagar, NIA Jaipur, various international guests joined online, नीति निर्माता, शोधकर्ता, चिकित्सक, MOU partners, faculty of IIA New Delhi and Goa, faculty, dear UG and PG, PhD students of All India, not All India Institute of Art, but All India, because so many teachers are coming from the All India to represent this Ayurveda Day. हम प्रेस एंड मीडिया, हम आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि बिना आपके ये आयुर्वेद दिवस संभव नहीं है। इस आयुर्वेद दिवस की थीम, जहां आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट की कल्पना की गई है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, उसी के थीम पे इस आयुर्वेदा डे का थीम रखा गया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वार्तालाप को भी यहाँ पे कोट करेंगे, जिसमें उन्होंने श्री शुक्ला जी से बात की थी। श्री शुक्ला जी ने कहा था उस समय कि अंतरिक्ष से आपको कोई भी सीमा नजर नहीं आती है, पृथ्वी एकाकार दिखती है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का उद्योतक है। हम इस प्रोग्राम में, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी मंचासीन गेस्ट हैं, ये कितने व्यस्त रहते हैं, उस व्यस्ततम समय में से आपने यहाँ पर आकर अपने आशीर्वाद से हमको अनुग्रहित किया है। इसके लिए वी हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर ब्लेसिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। For it's my pride and privilege to hear for your blessings from the different part of the India also. So I think it is a great privilege for us to organize this event in the Goa IIA. वर्ष 2022 के उद्घाटन समारोह के बाद गोवा ने शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। सर, आज इस प्रोग्राम में हमारे चांसलर भी हैं, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा हमारे गोवा यूनिवर्सिटी से
अफिलेटेड है और उसके चांसलर हमारे राज्यपाल साहब भी हैं। सो आई वेलकम सर इन दिस प्रोग्राम फॉर ब्लेसिंग अस इन फुल फ्लेज मैनर। सर, पिछले कई सालों से जो हमारा अय्या गोवा है वो इतना डेवलप हुआ है कि करीब करीब यहाँ पे 300 यूजी के स्कॉलर, 10 पीजी स्पेशलिटीज़ और 22 स्पेशल ओपीडी हमारी चल रही हैं। प्रतिदिन 700 से 800 पेशेंट हमारे पास अभी आने लगे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि 2-3 साल के ड्यूरेशन में हमने बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो किया है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत सहयोग प्रदान किया है। इस मंच पर बैठे हुए हमारे आयुष मंत्री, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे प्रथम आयुष मंत्री श्री यशोपाल नायक जी, जिन्होंने इसका बीजारोपण किया था, आज वो पौधा बनकर हमको फूल और फल दे रहा है। हम इसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। सर, आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, जो कि हमको कहीं भी किसी भी आशीर्वाद देने में झिझकते नहीं है। ऐसा हमको महसूस होता है कि कभी भी किसी भी समय आप किसी भी जगह बात कर लीजिए, आपको आयुर्वेद के बारे में हमसे ज़्यादा कुछ बता देंगे वो। तो इसलिए हम ऐसे अपने मंत्री जी का भी इस स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम अपने क्षेत्र के एमएलए जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रवीण आलेकर जी, इनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे सचिव महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय 2 आयुर्वेदाचार्य हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जिसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जो आयुर्वेद के प्रशंसक भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, साथ ही हमारे पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेजा सर भी, दोनों ही आयुर्वेदाचार्य हैं। और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हम आयुर्वेद के लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर हम लीड कर रहे हैं। हम अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत जी का हृदय से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का आशीर्वाद लगातार हम पर बना रहे। इसी प्लेटफॉर्म से हम ये भी चाहते हैं कि आप लोगों ने, कई लोगों ने डेवलपमेंट यहाँ पे देखा होगा। ऐसा देखते हुए हम बात कर रहे थे अभी, साथ ही हम अपने मुख्यमंत्री महोदय, अपने पूर्व आयुष मंत्री महोदय, अपने मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं कि अब हमको और ज़मीन की आवश्यकता है यहाँ पर, जिससे हम और डेवलपमेंट कर सकें इसका। अभी हमारे पास 50 एकड़ लैंड है, लेकिन इसमें मेडिकल टूरिज्म के कैसे 50 कॉटेज, फार्मेसी विभाग, रिसर्च सेंटर, बहुत सारी चीज़ें बननी हैं। इसके लिए हमें रिक्वेस्ट है सर से कि हमको और थोड़ा सा स्थान प्रोवाइड करें, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हम कर सकें। इस 10वें आयुर्वेद दिवस के पिछले दशक की उपलब्धियों के उत्सव नहीं, बल्कि यह भारत के एक प्राचीन ज्ञान विश्व भर के साझा करने की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि है। मानव और प्रकृति दोनों स्वास्थ्य के लिए हैं। आयुर्वेद द्वारा विश्व कल्याण के लिए हम सभी करबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। दशहरे एवं दिवाली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार 10वें आयुर्वेद दिवस के कार्यक्रम में संस्थान में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि इसी मौके पर हमको हमारे प्रधानमंत्री महोदय का मैसेज भी मिला है, जिसका हम वाचन करेंगे। सर, यहाँ से आपकी अनुमति चाहिए हमको इसमें। 10वें माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत लगाव है हमारे साथ, और जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से आयुर्वेद का, योग का, नेचुरोपैथी का, आयुष पद्धतियों का प्रचार प्रसार ही हुआ है। तो इसलिए जब ये हमको मैसेज मिला तो हम लोग इतने खुशी हुए कि सर नहीं आ पाए, लेकिन सर का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो इसलिए 10वें आयुर्वेद दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों का समय में आयुर्वेद ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए, बल्कि जीवन प्रणाली में संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है। मानव कल्याण और पृथ्वी का संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं और आयुर्वेद दिवस हमें इसका स्मरण कराता है। हम सब संतुलित आहार, दिनचर्या और प्राकृतिक संसाधनों के
समान जैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तब हम अपनी सेहत के साथ साथ धरती माँ के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं। सरकार आयुर्वेद को वैज्ञानिक मानकों को से सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं को विश्व स्तर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने जन जागरूकता, गुणवत्ता सुधार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया है। आने वाले वर्षों में मंत्रालय की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। आयुर्वेद के सरल व्यवहारिक सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर हम स्वस्थ जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। सतत विकास के लिए भी यह काम हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समस्त देशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम सभी लोगों का पुनः इस हॉल में, इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. Let there be wellness and let us all move towards the ultimate happiness as desired by one and all. Thank you, sir, for welcoming the August gathering and for setting the tone for the celebrations. Ladies and gentlemen, as we move further, we will now be launching the guidelines for examining Ayush-related inventions. These guidelines have been developed to facilitate intellectual property rights protection for traditional systems of Indian medicine. Initiated through an inter-ministerial committee under DPIIT and finalized in consultation with the Ministry of Ayush, these guidelines will streamline patent examination of Ayush interventions. This will be a significant step towards safeguarding and promoting India's traditional knowledge. May I please request the Honorable Chief Guest, Governor Sir, the Honorable Chief Minister and the other dignitaries to kindly please release these guidelines for examining Ayush-related inventions. A big round of applause, ladies and gentlemen, the guidelines for examining Ayush-related inventions. Thank you very much, sir, for releasing these guidelines. We will now begin the digital releases of websites and campaigns. The first is the inauguration of the Integrative Oncology Research and Care Center. All India Institute of Ayurveda, Goa, is dedicated to advancing the integration of Ayurveda with modern oncology through clinical research, education, and specialized healthcare delivery. With the state-of-the-art infrastructure including therapy units, inpatient and outpatient facilities, laboratories, and specialized equipments, IR serves as a national hub for conducting integrative oncology trials and interventions. Thank you, sir, for inaugurating the center by pressing the remote button. We will now move forward to launch of Desh Ka Swasthya Parikshan, nationwide campaign for the assessment of the health status of individuals using CCRAS Swasthya Assessment Scale. This will now be launched, ladies and gentlemen, to assess citizens' health and promote preventive healthcare through digital questionnaire based on classical Ayurvedic health parameters. This will be useful to students, professionals, senior citizens, and high-risk groups. We will now be moving on to the launch of the website, Admirable Personalities to Transform Ayurveda, prepared as a tribute to the luminaries in the field of Ayurveda. This is the APTA portal, Admirable Personalities to Transform Ayurveda. Ladies and gentlemen, a digital tribute portal documenting live profiles of Ayurveda luminaries, which will now be launched to inspire future generations. This will cover early life, education, achievements, publications, awards, and societal contributions of these legends. Let's have a big round of applause from everyone.
We move forward to the launch of web-based portal titled Digitized Retrieval Application for Versatile Yardstick of Ayush Substances, that is Dravya. Dravya is a comprehensive web-based database of Ayush medicinal substances designed to support education, research, and drug policy initiatives. This covers pharmacology, botany, chemistry, pharmacy, and textual references. Also, AI-enabled, modular, and integrable with Ayush Grid. This will have a QR code support for use in gardens and repositories. In phase 1, open access will be provided to students, researchers, and practitioners for 100 substances. May I request you, sir, to kindly please launch Dravya by pressing the remote button. जोरदार तालियां सभा की ओर से, ladies and gentlemen, a round of applause as we celebrate these launches. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We will now announce the disbursement of grants. Disbursement of grants as seed money to the winners of Smart Hackathon 2024 by All India Institute of Ayurveda, Delhi. The Ministry of Ayush partnered in Smart India Hackathon with AIIA as the nodal agency, contributing 5 problem statements. Winning teams are being awarded seed grants of up to rupees 3 lakh each as per SIH guidelines. The grant disbursement will be done to Team Stack Squad for Virtual Herbal Garden. This platform allows users to explore, learn, and access information about medicinal plants digitally using virtual reality and augmented reality. जोरदार तालियां वर्चुअल हर्बल गार्डन के लिए जो कि स्टैक स्क्वाड ने डेवलप किया है. इनके टीम लीडर हैं सीबी सुष्मिता और कॉलेज का नाम है कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु. बहुत बहुत बधाई. The next grant will be awarded to Team Supernovas for Smart Yoga Mat. This innovation embeds sensors and AI to track yoga postures in real time, providing personalized feedback to practitioners. It is highly relevant for home-based fitness, improving posture accuracy, preventing injury, and offering guided practice that makes yoga accessible and effective without a physical instructor. Let's have a big round of applause for Team Supernovas for Smart Yoga Mat. The team leader is Padma Prabhati and the college name is MEPCO Schlenk Engineering College, Tamil Nadu. Many congratulations. The next grant will be presented to Team Code Crafts for Ayush Startup Registration Portal. बहुत बहुत बधाई. This portal simplifies and accelerates the registration process for startups operating in the Ayush sector, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy. It will foster entrepreneurial growth, encourages innovation in traditional medicinal fields, and helps startups comply with regulatory requirements easily. The team leader is Karthik and college name is UIET Punjab University, Chandigarh. जोरदार तालियां इनके लिए भी. The next grant will be presented to Team Carbon Daters for Portal of Innovation and Excellence. The Portal of Innovation and Excellence act as a central platform that aggregates and displays data from rigorous evaluations of innovation performance in publicly funded R&D institutions. This transparency and data-driven insight will help policymakers, funding agencies, and research managers make informed decisions to improve resource allocation, promote accountability, and drive continuous advancement in public research sector. The team leader is Kaushal Vats Vyas and college name is Army Institute of Technology, Pune. Let's have a huge round of applause for Team Carbon Daters. बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इन सभी टीम्स को.
Ladies and gentlemen, we will now move forward to the release of books, booklets, protocols, and IEC materials. As we begin, may I please request our Honorable Chief Guest to kindly please release these books and IEC materials digitally. The first one is 25 years journey of National Medicinal Plant Board. जोरदार तालियां इस पहली किताब के लिए डिजिटल लॉन्च है. The next one is Vrikshayan, exploring the medicinal flora of All India Institute of Ayurveda, Goa. The next is the Ayurveda for Sports Medicine, a comprehensive guide for enhancing strength, focus and rehabilitation of athletes. जोरदार तालियां इनके सभी के लिए. The next one is the Ayurveda Insight for Restful Sleep. This is for harmony, health and happiness. The other one is the algorithm for integrative management of leukemia towards improved outcomes in leukemia care. The other one is phytotherapeutic insights from Sushrut Samhita, revisiting Sushrut, redefining healing, bridging Ayurveda and modern research. The next one is the Seeds of Innovation, Navapravartan Idea Hackathon 1.0. This book is a collection of 101 ideas which emerged from Hackathon 2024. The next is the Ayush Innovation Readiness Framework, Scaling Traditional Wisdom, Shaping Global Innovation. The next one is the Standard Operating Procedures for PCOS Management through Ayurveda. And now we have the IEC materials, the Information, Education and Communication material from various departments of All India Institute of Ayurveda, Goa, which are around 27 in number, which are being released now. एक बार जोरदार तालियां इन सभी books और materials के लिए. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, for launching and releasing these various materials which are going to be of great help. Together, these releases highlight Ayurveda's rich heritage, clinical excellence, and innovative future. देवियों और सज्जनों, हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि आज श्री श्रीपद यसो नायक जी हमारे साथ हैं. आयुर्वेदा डे के इस अवसर पर आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. We request you, sir, to kindly please share your valuable insights with all of us now. Please join hands as we welcome Shri Shripad Yeso Naik ji, who's here with us today. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. नमस्कार. आज के इस 10वां आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, श्री प्रताप राव जाधव जी, आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे विधायक श्री प्रवीण आर्लेकर जी, वैद्य राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी आयुष, इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर श्री अशोक कुमार प्रजापति जी, डॉक्टर सुजाता कदम जी, उपस्थित सभी वैद्य, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में उपस्थित इस कार्यक्रम में भाई और बहनों, आज हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं. 23 सितंबर को हम पहली बार 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं.
इससे पहले धनत्रयोदशी के दिन हमने 9 आयुर्वेदा डे मना लिए, लेकिन इस साल जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे 1 ही तारीख को होता है, उसी तरह से ये 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर की तारीख 1 करके आज हम पहला या 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। यह आयुर्वेदा दिवस ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह भारत की प्राचीन धरोहर का एक वैश्विक पुनर्जागरण है। आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद हर साल इस आयुर्वेदा दिवस को बड़े जोर शोर से हमने मनाया था। इस वर्ष की जो थीम है वो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यह हमें याद दिलाती है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं है, यह जीवन की एक दिशा है। यह केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं संवारता, बल्कि संपूर्ण धरती और पर्यावरण को संतुलित रखने में शक्ति भी देता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय को एक स्वतंत्र पहचान दी, तब भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारी जड़ें मजबूत है, हमारी परंपरा ही हमारा भविष्य है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस मंत्रालय का पहला मंत्री बना। 2014 से 2021 तक मैंने इस मंत्रालय को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया और मुझे इस मंत्रालय की सेवा करने का भी मौका मिला। पिछले दशक में आयुष का ढांचा व्यापक रूप से मजबूत हुआ है और आज यदि कोई पूछे कि मैंने कम से कम 10-11 मंत्रालयों में काम किया और कोई मुझे पूछे कि इस वक्त का जो मंत्रालय में आपने काम किया कौन सा मंत्रालय आपको अच्छा लगा, तो मैं निश्चित तौर से पूछूंगा ये आयुष मंत्रालय करके, क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ भवनों और परियोजना का नाम नहीं है, यह एक सभी के हृदय की एक धड़कन है। मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, मुझे इस माध्यम से देश की सेवा करने का और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे कार्यकाल में योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2014 में ये सुझाव दिया और इस योग को एक बड़ी मेजॉरिटी से मान्यता मिली और 11 दिसंबर 2014 में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए मेरे कार्यकाल में एक अत्यंत गर्व की बात मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में मंत्रालय ने नीतियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैश्विक सहयोग और शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन, 103 देशों के साथ सहयोग, WHO का पारंपरिक चिकित्सा केंद्र में ICD 11 पारंपरिक चिकित्सा की मान्यता, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, 1 हब 1 स्टैंडर्ड और योग आयुर्वेदा कूटनीति, इन सब उपलब्धियों ने आयुर्वेदा को विश्व पटल पर एक स्थान स्थापित किया हुआ है। केंद्रीय आयुष मंत्री के रूप में कार्य करते हुए गोवा की धरती पर भी कई ऐतिहासिक कार्य करने का मौका मुझे मिला। इस अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान की स्थापना के साथ साथ 24 करोड़ रुपए से उत्तर गोवा में 50 बेडेड हॉस्पिटल, वैसे उत्तर गोवा में भी ये दोनों जिलों में हॉस्पिटल स्थापित, एक तो कंप्लीट हुआ है, दूसरा काम चालू है। वैसे ही रायबंदर में आयुष अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हुआ है, जो आज चिकित्सा अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। केवल गोवा ही नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर भी आयुष क्षेत्र में नए आयाम जोड़े गए हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयुष पद्धतियों के शोध और विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई। 50 बिस्तरों वाले 72 नए आयुष अस्पताल स्थापित हुए और 257 आयुष ग्रामों की नींव रखी गई। योग और नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटरों के 1062 नए केंद्र शुरू किए गए। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 97 नए महाविद्यालयों की आर्थिक सहयोग दे दिया है। साथ ही 70 औषधालय, प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस कार्यकाल में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी अस्तित्व में आए। इनमें नई दिल्ली का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान वो नरेला में है, गाजियाबाद का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, हरियाणा का राष्ट्रीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे का राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और गोवा का अखिल भारतीय आयुर्वेदा योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान शामिल है। इन सभी उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आयुष केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर है। आज आयुष के माध्यम से हम स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दृढ़ कदम बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है स्वस्थ शरीर ही सफल जीवन की नींव है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। आज आवश्यकता है कि हम आयुर्वेदा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार का हिस्सा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाएं। आइए हम सब 10वें आयुर्वेदा दिवस पर सब मिलकर संकल्प लें कि हम आयुर्वेदा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जीवन की धरोहर के रूप में फैलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहकर धरती को भी उतना ही स्वस्थ बनाएंगे जितना स्वयं को, और हम आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित भविष्य की नींव रखेंगे। आयुर्वेद भारत की आत्मा है, आयुर्वेद मानवता की आशा है और आयुर्वेद ही आने वाले कल का मार्ग है। आइए हम सब जन जन और घर घर तक इस आयुर्वेदा को पहुंचाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। भारत माता की जय। स्वस्थ शरीर ही सफल जीवन की पहचान है। आज का दिन केवल एक उत्सव ही नहीं है, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का वैश्विक जागरण भी है। अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। Ladies and gentlemen, we will now be proceeding with the exchange of MOUs. The first is the tripartite MOU on integrative oncology. This is an MOU between AIIA Goa, Ministry of Ayush, Directorate of Health Services, Government of Goa, and Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer, Tata Memorial Center, Mumbai. It aims to combine Ayurveda with modern oncology research and healthcare. The partnership will strengthen evidence-based integrative cancer care. I request Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji, Director, AIIA Goa, and Dr. Tripat Banavali from ACTRAC, as well as Dr. Rupa Nayak from DHS to kindly please exchange this MOUs. This is a tripartite MOU on integrative oncology. आइए हम सभी लोग जुड़ जाते हैं करतल ध्वनि सभी की ओर से। Thank you very much. Ladies and gentlemen, as we move forward, there will now be an exchange of MOU between All India Institute of Ayurveda, New Delhi and Multani Pharmaceuticals on advancing evidence-based Ayurveda through pre-clinical and clinical research.
It emphasizes validation of classical formulations, innovative therapies, and training of young researchers. The partnership strengthens academia-industry collaboration for translational research and global promotion of Ayurveda. May I once again request Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati ji and Dr. Sanjay Kumar, Executive Director, Multani Pharmaceuticals. Once again, a big round of applause, ladies and gentlemen. Exchange of MOU between AII New Delhi and Multani Pharmaceuticals. Thank you very much. माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आयुष मंत्रालय एवं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपने सक्रिय योगदान से जनहित की नीतियों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी गहरी रुचि दिखाई है। आज हमारे बीच आप पधारे हैं। मैं आदरपूर्वक निवेदन करती हूं कि अपना प्रेरक उद्बोधन आप कृपया प्रस्तुत करें। करतल ध्वनि से आइए स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण। नमस्कार। 10वें आयुर्वेद दिवस महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित गोवा के आदरणीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, हमारे गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे ज्येष्ठ सहयोगी माननीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक जी, यहाँ के माननीय विधायक श्री प्रवीण आर्लेकर जी, उपस्थित सभी हमारे संसद सदस्यगण, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, आया गोवा की प्रभारी डॉक्टर सुजाता कदम जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, आयुर्वेद के विद्वज्जन व प्रेमियों, प्रेस और मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों तथा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े मेरे प्यारे सभी देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं आप सभी को आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सबके लिए है एक गौरव का पल है जब हम सब मिलकर गोवा की इस पावन भूमि पर 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। यह अवसर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इन 10 वर्षों की यात्रा में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस को निश्चित तिथि 23 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव आयुर्वेद को वैश्विक कैलेंडर में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इसे दुनिया भर के लोगों तक सशक्त रूप से पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यह हमारे उस संकल्प को दोहराता है कि आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन और पर्यावरण दोनों के संरक्षण का विज्ञान है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य तभी संभव है जब प्रकृति स्वस्थ और संतुलित हो। इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मुझे आप सबके साथ यह साझा करते हुए भी खुशी है कि
पिछले साल आयुर्वेद दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। पहले चरण में 1,30,00,000 से अधिक नागरिकों का प्रकृति परीक्षण करके 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए। भारत और इसे हमारे भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। इस अभियान की शुरुआत उस पावन क्षण से हुई जब भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं पहला प्रकृति परीक्षण कराकर पूरे देशवासियों को प्रेरित किया। यह अभियान केवल संख्याओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे डेटा आधारित अनुसंधान का एक नया अध्याय खुला। इस विशाल डेटाबेस ने न केवल आयुर्वेद के सिद्धांतों की पुष्टि होगी, बल्कि यह आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर इंडिविजुअल और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को एक नई दिशा देगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्ष में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में ऐतिहासिक काम किया है। विश्व भर में 24 देश और 48 संस्थानों के साथ समझौते हुए हैं। 15 अकादमिक चेयर्स और 39 देशों में 45 आयुष सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। WHO के साथ मिलकर जामनगर गुजरात में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना और WHO ICD-11 में पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करना उसकी वैश्विक मान्यता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। आयुष वीजा और हील इन इंडिया जैसी पहले भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का ग्लोबल डेस्टिनेशन बना रही है। साथियों, हमें भारत को ग्लोबल वेलनेस की कैपिटल बनाना है एवं हमारे गोवा जैसे राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, अपने वेलनेस रिजॉर्ट्स एवं रिट्रीट के माध्यम से यह लक्ष्य पूरे करने में मदद कर सकते हैं। साथियों, जब दुनिया जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, तनाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब आयुर्वेद एक स्थायी और समग्र समाधान प्रदान करता है। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के 3 महास्तंभों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का बहुत गुणगान किया गया है और आहार को ही महाऔषधि कहा गया है। महाभैषजम कश्यप संहिता में आहार को ही सबसे बड़ी दवा माना गया है, जिसका अर्थ है कि एक अच्छी दवा के समान भोजन का उपयोग किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में रोगों के उपचार के बजाय प्रिवेंटिव वेलनेस की ओर ध्यान दिया जा रहा है और अब समय आ गया है कि हम वेलनेस की ओर काम करें और आयुष वेलनेस पर्यटन हमारे सामने अपार आर्थिक संभावनाओं का द्वार खोलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वस्थ भारत, समृद्ध और विकसित भारत, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। मैं यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंताओं की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि जंक फूड हमारी सेहत को बिगड़ रहे हैं। मोटापा हमारे भारत में तेजी से बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल आधारित बीमारियां हमारा बजट बिगाड़ रही है, जो स्वस्थ और समृद्ध भारत की राह में एक बड़ी चुनौती है। इसलिए
हमें इस चुनौतियों को स्वीकार करके तेजी से काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद सहित हमारी पद्धतियों में वर्णित आरोग्य को बढ़ाने वाले आयुष आहार और आयुष आधारित पेय पदार्थों को तेजी से प्रसारित पर काम होना चाहिए। आयुष आहार को लेकर आयुष आहार को लोकप्रिय बनाने के लिए हमने एक छोटी सी पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वर्ष 21 जून को की थी कि दिल्ली के 70 लोकेशन पर रिफ्रेशमेंट के रूप में आयुष आहार हमने वितरित किया था। मैं आज यहाँ आह्वान करता हूँ कि आप सभी आयुष आहार के लिए एक समग्र अभियान चलाएं ताकि देश भर में स्वस्थ आहार विहार की संस्कृति विकसित हो, हमारे नागरिकों की सेहत में सुधार हो, देश में बीमारियों का बोझ घटे, उत्पादकता बढ़े। इससे हमारे युवाओं को स्वरोजगार के लाखों अवसर भी मिलेंगे और आरोग्य लाभ भी होगा। साथियों, आयुष मंत्रालय का एक और इनिशिएटिव में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आयुष दवाइयों को सस्ती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आयुष मंत्रालय आयुष औषधि केंद्र खोल रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा पिछले वर्ष दिल्ली में शुरू किए गए आयुष औषधि केंद्र की तर्ज पर फर्स्ट स्टेज में आयुष मंत्रालय अपने सभी संस्थानों में आयुष औषधि केंद्र शुरू कर रहा है, जिसको अगले चरणों में जिला एवं तहसील तक ले जाने की हमारी योजना है। इससे आयुष पद्धतियों की सारी ब्रांड्स की दवाइयाँ एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। पिछले साल आयुर्वेद दिवस में 150 से अधिक देशों ने मनाया और इस बार हम इसे अधिक व्यापक ग्लोबल पार्टिसिपेशन की ओर अग्रसर है। आइए इस आयुर्वेद दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम आयुर्वेद को केवल भारत की परंपरा न मानकर बल्कि विश्व के लिए स्वास्थ्य और पृथ्वी के लिए संतुलन का उपाय बनाएंगे। यही भारत का संदेश है, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के प्रचार के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के सभी विजेताओं को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आयुष मंत्रालय की ओर से आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 एवं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में भाग लें और हर व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व का प्रचार करें। जन जीवन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद निरंतर आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प है। आप सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए एवं हम सभी का मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार आपने बताया कि भोजन का भी किस प्रकार दवा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत प्रेरक था। वाकई आयुर्वेद भारत की आत्मा है, आयुर्वेद मानवता की आशा है। आयुर्वेद दिवस के इस विशेष अवसर पर हमें गर्व है कि गोवा जैसे सांस्कृतिक और परंपराओं से संपन्न राज्य का नेतृत्व ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सदैव जन कल्याण और समाज के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है और जो स्वयं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं।
मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से कि वे कृपया पधारें और अपने मार्गदर्शक विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले 10th आयुर्वेदा डे 2025 आयुर्वेदा फॉर द पीपल एंड आयुर्वेदा फॉर द प्लेनेट एक कार्यक्रम आज गोवा में हो रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन हमारे गोवा में किया। इस कार्यक्रम में हमें चीफ गेस्ट के ऊपर यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर श्री कुशापति अशोक गजपति राजू यहाँ पे हैं, हमारे आयुष मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव, हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री श्रीपाद येसो नाइक, हमारे लोकल एमएलए श्री प्रवीण आलेकर, सेक्रेटरी फॉर द आयुष श्री राजेश कोटेचा जी, डायरेक्टर फॉर द अय्या डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति एंड डीन ऑफ ऑल इंडिया आयुर्वेद प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता कदम। पूरे देश भर में से जो आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर्स बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, एंकर ने बोला कि 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टेज पे हैं। मैं तो बताऊंगा कि हॉल में ऑफ कोर्स 90% ऑफ द पब्लिक टुडे इज द आयुर्वेदा डॉक्टर्स। इसलिए मैं इस आयुर्वेदा डे को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहली बार जब 21 जून को उन्होंने योगा डे, द वर्ल्ड योगा डे बना के मोर देन 140 कंट्रीज में आज योगा डे मना रहे हैं। इसी तरह से मुझे पता है कि इससे आगे मोर देन 120 कंट्री विल सेलिब्रेट द आयुर्वेदा डे। डेफिनेटली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन पूरे वर्ल्ड के लिए है। कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किनके लिए अच्छे दिन आए। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेदा के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। इससे अच्छे दिन और अभी नहीं हो सकते। 2014 के बाद यानी आयुष मंत्रालय अलग से फॉर्म होना और इस तरह के इंस्टीट्यूट एक जगह नहीं ढेर सारे जगह पे देश में इतनी बड़ी यानी आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना, ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के लिए बड़े गर्व की बात है। ना बल्कि एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट पूरे देश भर में सभी गवर्नमेंट्स यानी खुद के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये आयुर्वेदा के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक स्टेप आगे जाके यानी द इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर, इसके बारे में मैं मेरी फॉर्मल स्पीच दूंगा। उससे पहले मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड। गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं, लेकिन समझो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे। अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे। 2022 में द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो गोवा में हुआ था, और वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अय्या का इनॉग्रेशन तब से 2022 में पेंजिम से किया था, और आज हम यहाँ बैठ के आयुर्वेदा डे मना रहे हैं। मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ कि मुझे भी बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आज यानी अय्या के ओपीडी इट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट पर डे। दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स वन हु आर प्रैक्टिसिंग इन द अय्या। 4 साल में इतनी बड़ी ओपीडी नहीं हो सकती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूर डेडिकेशन एंड यूर रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस इट इज इन अय्या की जो हो रही है, इसीलिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। गोवा सरकार की तरफ से इससे भी आगे जो जो सपोर्ट आपको लगेगा, सो डेफिनेटली हम गोवा सरकार आपके साथ में रहेंगे। मुझे लगता है कि और कुछ आने वाले दिनों में एट प्रेजेंट ऑल्सो दिस इज एन ऑल इंडिया नोन अय्या सेंटर, बट और कुछ दिनों में इट विल बी द ग्लोबली नोन अय्या सेंटर हो जाएगा। इसमें तीन मात्र शंका नहीं है। आज के इस वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मनाते वक्त ये तो फंक्शन गोवा में हो रहा है, लेकिन पूरे देश भर में इसी तरह के फंक्शंस
डिफरेंट स्टेट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स में यानी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक कॉलेजेस इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया जा रहा है। हम लास्ट 10 साल से, जब से हमारे पहले आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक जो बने, तब से लेके आयुर्वेदा के डे बाय डे डेवलपमेंट गोवा में देख रहे हैं। चाहे CCRS का अपना रायबंदर का रिसर्च सेंटर इन आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी एंड यूनानी, इसमें जो आयुष सेंटर चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम गोवा के लिए कर रहे हैं। नाउ द अय्या और विद द अय्या के साथ इंटीग्रेटेड सेंटर, ये इन फ्यूचर इट विल गिव बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हो जाएगी। मुझे मैं आज के इस अवसर पर डेफिनेटली यानी इंटीग्रेटेड जो कैंसर सेंटर के बारे में हो रहा है, इसलिए स्पेशली द टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर, all our Ayurvedic practitioners, those who are privately practicing, also हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर्स जो डिफरेंट मैंने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिसर्च, उनका भी इस अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज का दिन यानी इस सेंटर का इनॉग्रेशन वो भी ऑनरेबल गवर्नर के हस्ते, और कोई शुभ दिन नहीं हो सकता है जो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे के अवसर पर हम इस सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इसीलिए सभी का फिर एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। It is a privilege to join you the 10th Ayurveda Day to celebrate All India Ayurveda in Goa. This day reminds us the Ayurveda's rich heritage and our responsibility to carry its wisdom forward. Thanks to the vision of the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, Ayurveda Day has become a national and international movement. Promoting the India is a global hub of the health and wellness. The theme Ayurveda for the people and planet is deeply relevant today. In a world facing the climate change, lifestyle disease, and the rising medical cost, Ayurveda teaches us that the health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind, and environment. One of the biggest health challenges today is obesity. It is a silent epidemic, contributes to the diabetic, heart disease, hypertension, even cancer. Our Prime Minister has also underlined its seriousness. Ayurveda offers the sustainable answer through the Dinacharya, means daily routine, and Rutucharya, which is the seasonal routine. Mindful eating, regular physical activity, good sleep, Panchakarma therapy, and herbs like Triphala, Gugul, and Ashwagandha can help to reverse the obesity and prevents the complications. Goa, blessed with the rich biodiversity, our forest and western ghats and the coastal areas are home to the numerous medicinal plants described in classical text. Goa can become the living laboratory for conserving, the cultivating and scientifically validating this plant. This will protect us, our heritage, that supports the global research and creates a sustainable livelihood for local community. Integrative Oncology Center at Ayya, Goa, another the important step in the cancer care. The cancer is a growing burden and modern medicine alone cannot fully address its challenges. Today, I proudly announce the collaboration between the Government of Goa, Ayya Goa and ACTREC of the Tata Memorial Center, Mumbai is to set up the Integrative Oncology Center at Ayya, Goa. This center will combine the modern treatment like the surgery, chemotherapy, radiations with evidence-based and Ayurvedic therapies. It will improve recovery, reduce the side effect and enhance the immunity, becoming the model for the integrative care center, cancer care center in India and the world.
Ayurveda has survived for the thousands of years because it is rooted in the nature's eternal laws. It teaches us to respect water, soil, air, and to grow the food sustainably, and to treat our planet as the mother and not merely as a resource. In this time of the climate crisis, this is the message is more important than ever. As the Chief Minister, I assure you that Goa will continue to support the initiatives of the unique traditions with innovations. We will integrate the Ayurveda into the primary health care to promote the wellness tourism, encourage the research, and strengthen the Ayya Goa as a global center of excellence. Let us 10th Ayurveda Day be the new beginning. I congratulate the Ayya team and the dedications in the education, patient care, and research. I urge the students, practitioners, and citizens to become the ambassador of Ayurveda to practice and to promote the wisdom in daily life. Together, let us make the Goa hub of the holistic health and well-being. Let us ensure that every Indian, every Goan, and every global citizen enjoyed not just only a long life, but the healthy one and guided by the Ayurveda. Thank you. Jai Hind, Jai Ayurveda. As you rightly mentioned, sir, health is not only about the absence of illness, it is about harmony with the body, mind and the environment. अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार. Ladies and gentlemen, we will now move further and present the National Dhanvantari Ayurveda Awards 2025. The Ministry of Ayush has instituted the National Dhanvantari Ayurveda Awards conferred annually on Ayurveda Day to honor eminent Vaidyas and Ayurveda experts for their outstanding contributions and to motivate them to adopt and promote best practices in the pursuit of excellence. Each award carries a citation, a trophy, and a cash reward of Rs 5 lakhs. 3 awards are conferred every year. May I please request the Honorable Chief Guest to kindly please present these awards. सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं, आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर बनवारी लाल गौर जी को, an erudite scholar, prolific author and distinguished academician from Jaipur, Rajasthan. Devoted over 60 years to Ayurveda and Sanskrit. He earned his MD Ayurveda, MA Sanskrit, Diploma in German, PhD from Rajasthan University and Doctor of Literature from Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. As academician, administrator and chairman of national and international committees, he has supervised 24 PhD scholars and guided 48 postgraduates. For his outstanding scholarship, mentorship, and lifelong service, Ministry of Ayush is honoring Professor Banwari Lal Gaur with National Dhanvantari Ayurveda Award. Many congratulations to Professor Banwari Lal Gaur. And here is a check, ladies and gentlemen, of Rs 5 lakhs. करतल ध्वनि सभी की ओर से प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड. बहुत बहुत शुभकामनाएं. We move on and now we'll be presenting the award to Ashtavaidyan Neelakantan Moose E.T.,
who's an eminent scholar, physician, and torchbearer of Kerala's Ayurvedic tradition, who completed his BA MS from Vaidyaratnam Ayurveda College, Kerala University. He's MD and Chief Physician of Vaidyaratnam Group, a renowned institution carrying forward a 200-year-old legacy in Ayurveda. With visionary leadership, he heads a team of 100+ physicians serving thousands of patients annually. A revered guru of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, he has mentored generations of scholars and contributed as a member of Executive Board of ATAB. Ministry of Ayush is honoring him with the National Dhanvantari Ayurveda Award 2025. A big round of applause, ladies and gentlemen, for Ashtavaidyan Neelakantan Mooseti. A big round of applause. The citation, check, memento. This is the National Dhanvantari Ayurveda Award 2025. Many congratulations to Ashtavaidyan Neelakantan Moos. बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. आगे बढ़ते हैं और ये जो अगला अवार्ड है वो जाता है वैद्य भावना पराशर को, a distinguished scholar and researcher who's an alumna of the University of Bombay and Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. For over 25 years, she has advanced Ayurveda through her work at CSIR, where she served as Senior Principal Scientist, Principal Investigator of the Ayush Center of Excellence for Ayur Genomics at CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, and Professor at Academy of Scientific and Innovative Research. A pioneer of Ayur Genomics, she has provided genomic and molecular bases to Prakriti and Tridosha, discovered predictive health markers, and developed AI/ML-based algorithms for Prakriti analysis. Many congratulations. She has delivered lectures at national and international forums, including the WHO, honored with National Dhanvantari Ayurveda Award. A round of applause for वैद्य भावना पराशर. जोरदार तालियां वैद्य भावना पराशर के लिए और सभी धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड के विजेताओं के लिए करतल ध्वनि से आइए हम सभी लोग इन्हें सम्मानित करते हैं और अपना प्रेम इन तक पहुंचाते हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है. आज सभी धन्वंतरी माननीय राज्यपाल गोवा को आमंत्रित करती हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें. आइए करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं उनका जो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा श्री पुष्पति अशोक गजपति राजू जी. Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pratap Rao Jadhav, Honorable Ayush Minister,
in the Ministry of Health and Family Welfare, Shri Shripad Nayak, Honorable Minister of State, Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy, Praveen Arlekar, MLA, Pernem, Goa, Sri Vaidya Rajesh, Secretary Ministry of Ayush, Dr. Pradeep Kumar Prajapati, Director of All India Institute of Ayurveda, Goa, Dr. Sujata Kadam, Dean of the All India Institute of Ayurveda, Goa, doctors, researchers, policymakers, media representatives, students, and my dear friends. It is a matter of great pride to me to join you on this 10th Ayurveda Day celebrated under the theme Ayurveda for People and the Planet. Since its inception in 2016, Ayurveda Day has grown from a national initiative into a global movement, today observed in about 150 countries. The Government of India's decision to fix 23rd September as Ayurveda Day coincides with the autumn equinox, beautifully reflects Ayurveda philosophy and harmony between body, mind, spirit, and environment. Each year, Ayurveda Day as per the NSSO survey 22-23, 95% of rural and 96% of urban Indians are aware of traditional medicine. Nearly half the population use Ayush systems. 48% and 45% of rural people use it for regeneration and about 26 to 28% for therapeutic purposes. Over 2.5 crore households have at least one member practicing yoga. This growing acceptance reflects Ayurveda's relevance. However, we must also safeguard it from false claims and unscientific promotion. Authenticity, ethics, evidence must guide its participation and propagation. Equally important is
engaging the younger generation, introducing Ayurveda in schools through lectures, health clubs, and lessons on yoga, diet, and seasonal routines can instill healthy habits and prevent lifestyle disorders like obesity, hypertension, and diabetes. At the grassroots, the Ministry of Ayush, through NCISN, research councils, and the Medicinal Plant Board has been engaging with indigenous systems and communities. Local fairs, exhibition, and wellness tourism initiatives can both showcase our biodiversity and create sustainable livelihoods. Goa, with its rich cultural heritage and global recognition as a tourist destination, has great potential in this regard. The All India Institute of Ayurveda, Goa, inaugurated in 2022, stands as a center of excellence with 300 undergraduate students, 10 postgraduate courses, 22 plus OPDs, and a 100-bedded hospital. Its eco-conscious, plastic-free, 5-star campus embodies Ayurveda's holistic philosophy. Today we rank another milestone, the establishment of an integrative oncology unit through a partnership between AII Goa, Ministry of Ayush, Government of Goa, and Tata Memorial Center, combining the strengths of Ayurveda and modern oncology for holistic cancer care. With its collaboration, AIIA Goa can make the state of a global hub of wellness tourism, offering authentic Panchakarma therapies, herbal gardens, and research on local medicinal plants. Ladies and gentlemen, we celebrate the 10th Ayurveda Day. Let us remember that Ayurveda is more than medicine, it's a way of life. It teaches balance, prevention, and respect for nature, offering solutions to both lifestyle disorders and environmental challenges. I congratulate the winners of the National Dhanvantri Ayurveda Awards 2025 for their contribution to promotion and propagation of Ayurveda. I also highlight the upcoming campaign Swat Nari Shak Parivar Abhiyan, placing women's health and empowerment at the center of national well-being. Through Ayushman Arogya Mandirs, hospitals, and community platforms, Ayush systems will contribute screening for NCD, anemia, TB, cancers, and maternal child health, while offering yoga, dietary guidance, herbal remedies, and counseling. Outreach will include women-centric counseling, adolescent health sessions, special camps and interventions in aspirational and tribal districts. In addition, I appeal to all to actively participate in the Swachhata Hi Seva campaign 2025 from 17 September to 2nd October to spread awareness of cleanliness and its importance for a healthy society. Together, let us build a healthier society, a greener planet,
and a bright future. Jai Hind, Jai Ayurveda, Jai Goa. Thank you. Thank you, sir, for giving us your well wishes. You're a visionary leader, a guiding light for all of us. You've always encouraged the promotion of India's rich cultural and traditional knowledge systems, especially Ayurveda, which are the pride of our nation. Thank you very much, sir, for joining us here today and also for addressing us. As we mark the culmination of this memorable celebration of Ayurveda Day, it becomes our duty to express heartfelt gratitude to all who have contributed in the success of this occasion. For this, may I please invite Professor Dr. Sujata Kadamji, esteemed Dean of All India Institute of Ayurveda, Goa, to kindly please present the vote of thanks now. Ma'am. सभी को सादर प्रणाम। मंचासन, मान्यवर अतिथिगण, आदरणीय गणमान्यजन, सहयोगीजन तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा की ओर से इस 10वें आयुर्वेद दिवस के स्मरणीय अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने प्रस्तुत मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है। यह अवसर मुझे उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अपनी उपस्थिति, सहयोग और प्रोत्साहन से इस समारोह को सफल एवं गरिमामयी बनाया। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इस वर्ष से अब हर साल आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर से हो गई है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी को समस्त आयुर्वेद परिवार और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। माननीय राज्यपाल जी ने AIIA गोवा में 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार किया और आज आपके कर कमलों से अनेक महत्वपूर्ण पहले संपन्न हुई। इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट का उद्घाटन, देश का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान का शुभारंभ, आपदा द्रव्य वेबसाइट का लोकार्पण, स्मार्ट हैकेथॉन 2024 के विजेताओं का अनुदान राशि का वितरण तथा पुस्तक एवं IEC सामग्रियों का विमोचन, इन सभी पहलों ने न केवल इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया बल्कि आयुर्वेद और स्वास्थ्य क्षेत्र को उन्नति के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। मैं माननीय राज्यपाल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम आपके अमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए कृतज्ञ हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस अवसर की गरिमा को और भी भव्य बनाने वाले हमारे आज के विशिष्ट अतिथि गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, जो स्वयं आयुर्वेद वैद्य है, उनका निरंतर सहयोग इस संस्थान को प्राप्त होता है। आपकी इस गौरवपूर्ण उपस्थिति के लिए हम सभी की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और आपने जो जमीन देने के लिए सोचने का जो वादा किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय एवं राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रतापराव जाधव जी, जिनके मार्गदर्शन में आयुर्वेद वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रगति कर रहा है, उनकी गौरवपूर्ण उपस्थिति के लिए समस्त आयुर्वेद परिवार एवं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से हार्दिक धन्यवाद। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय श्री श्रीपाद यसो नाइक जी, जिनके कार्यकाल में इस संस्थान का निर्माण हुआ तथा जिन्होंने इसके विकास के प्रत्येक चरण में अमूल्य योगदान दिया है, उनका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थिति हेतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। गोवा सरकार के माननीय मंत्री स्वास्थ्य, वन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री विश्वजीत राणे, उन्होंने
बहुत सहयोग प्रदान किया इस कार्यक्रम के आयोजन में, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही माननीय विधायक श्री प्रवीण आरेकर जी, जो इस उत्सव में सहभागिता हेतु यहाँ मंच पर पधारे, उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद। पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए और आयुर्वेद के विकास में उनके अथक प्रयास के लिए समस्त आयुर्वेद परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से उनको बहुत बधाई और धन्यवाद। हम गोवा राज्य, गोवा सरकार एवं उनके हेल्थ विभाग, जिनका 10वें आयुर्वेद दिवस समारोह के सफल आयोजन पूर्ण में समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनका भी हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। गोवा राज्य सरकार, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का ट्राई पार्टी MOU, जिनके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये केंद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और अनोखा कदम है। गोमांतक आयुर्वेद महाविद्यालय, KLE महाविद्यालय, सावंतवाड़ी महाविद्यालय और कोडोली आयुर्वेद कॉलेज, इन सभी के अध्यापक तथा विद्यार्थी इस कार्यक्रम में सहभागी होने हेतु जो यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आयुष मंत्रालय के सभी ऑफिशियल्स इस कार्यक्रम के सफलता के लिए सतत मार्गदर्शन और अथक प्रयास जो किए हैं, उसका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अध्यापक और अध्यापकेतर कर्मचारी, जिन्होंने सतत निरंतर काम करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके लिए, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आयुर्वेद दिवस समारोह में पधारे सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियाँ, प्रेस मीडिया तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के सभी शिक्षक, यहाँ के सर्व सुरक्षा और स्वच्छता कर्मी जो दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार। गोवा डाइवर्सिटी बोर्ड, गोवा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने रानबाजी उत्सव यहाँ जो स्टॉल लगाया है और उसके लिए बहुत सहयोग प्रदान किया, उसके लिए उनके प्रति आभार। मैं सभी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और बहुमूल्य योगदान से आज इस कार्यक्रम को सचमुच विशेष बनाया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। कुछ टेक्निकल रीज़न से बीच में ही राष्ट्रगान बजा, उसके लिए मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से आप सभी की माफ़ी चाहती हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम से ये बात हुई है, मैं सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। Once again, I thank you all for your gracious presence in this occasion of 10th Ayurveda Day. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, देव बरे करो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आयुर्वेद दिवस के सार्थक आयोजन का समापन करने जन तक पहुंचाएं। As we bring this program to a close, I request everyone to kindly rise for the national anthem. Let us unite in one voice, paying our deepest respect to our beloved nation. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्च
चञ्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you very much everyone for joining us here. We thank our Honorable Chief Guest for being here with us today. We thank all our dignitaries for gracing us with your auspicious presence. Ladies and gentlemen, many congratulations to all of us.